education. Explosive education risk education program can help by educating them about the risks associated with explosive ordnance, by promoting education, by integrating. Explosive ordnance risk education is a critical component of protecting children from the dangers of the explosive ordnance. सेशन हमारा स्टार्ट हो, हम 10 मिनट की टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारा टेक्निकल सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। तमाम लोग अपने डिस्कशन को बैठेंगे। मीडिया आल्सो प्लीज। Association Use your word of God. Thank you so much, sir. the rights and well-being of the children affected by conflict and explosive. बाकी हाथ से हम अपने पीएससी को दिलवाएंगे जो बाकी जाके हमारी तहसील। अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। अभी तो थामना आज की स्कूल ऑफ में मौजूद ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज सिस्टम, उस चीज को जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं उस अंडरस्टैंडिंग को आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने की मैं भी एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और आपसे तवक्कुह है कि आप ये इस स्पेस को हेल्दी स्पेस मान लीजिए, एक जहाँ पे आप लोग भी फ्रीली उनसे बात कर सकते हैं और मैं भी अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करूँ कि जो मैं बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक उसी सिमत में आ रही है जो मेरा मोटिव है। जब हम बच्चे को डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम में, अपार्ट फ्रॉम द लीगल सिस्टम, हम इस बच्चे को दो जुमरों में हमेशा डिफाइन करते हैं। पहला, या तो हम इस बच्चे को एज के जुमरे में डिफाइन करेंगे, या दूसरा डेफिनेशन जो हमारे कल्चर में है, इसको हम एज के पर्सपेक्टिव करेंगे। हमारे बहुत सारे मामला और बच्चों के अगेंस्ट जितने भी, जब इसका इंट्रोडक्टरी, इसको एज के जुमरे में डिफाइन नहीं करेंगे। हम इसको, जब हम इस बच्चे को एज ए ह्यूमन बीइंग के जरिए से पेश करते हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है इस बच्चे की ओर, बहुत सारी चीजें डाउन द लाइन चेंज होती है। नंबर सेकेंड, इस बच्चे को चीजों को देखने का एक यूनिक तरीका है। To address on the topic, one-day capacity building program on child protection and explosive ordnance risk education for the legal for children scheme 2024, organized by the J&K Legal Services Authority in the premises of the District Legal Services Authority, Poonch, for which purpose we have been here. NALSA Child Friendly Legal Services for Children scheme 2024 aims to provide accessible, effective, timely and child-sensitive legal aid to children and timely provision of free legal aid, advice, counseling and representation etc. for children. This program is being organized with the support of UNICEF with the objective of strengthening the capacities of key legal services functionaries in child protection and risk education related to explosive ordnance. Children are the most vulnerable part of our society and it is our collective responsibility to ensure their safety as well as well-being. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be the primary consideration. States should take appropriate measures to establish
child-friendly and child-sensitive legal aid systems, taking into account the children's evolving capacity and the need to strike an appropriate balance between the best interests of the child and children's right to be heard in judicial proceedings. India has a wide range of laws to protect children, and child protection is increasingly accepted as a core component of social development. The challenge is in implementing the laws due to inadequate human resource capacity on the ground and quality prevention and rehabilitation services. इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। अब उनके वेलफेयर के लिए डिफरेंट स्कीम्स है। वेलफेयर बच्चों को पढ़ाना कैसे है, इनको बढ़ाना कैसे है, उनको आगे किसे गुजारा कैसे, मतलब उनकी अवेयरनेस कैसे बतानी है, ये सब लोगों का और सब जो भी वर्कर्स हैं, जिन वर्कर्स हैं, इन्होंने सब मिलके काम करना है। और मैं एक बार फिर सेक्रेटरी साहब का, सेशन जज साहब का, ये यूनिवर्सिटी का अब्दुल मजीद साहब का थैंक यू करता हूँ। और ये एक बात हो गई कि हमने थोड़ी आपस में बात कर ली है कि ये काम चलेगा। इसमें पेरिफेरी में भी लोगों को भी अवेयर करना है। जो लोग गांव में रहते हैं, जो टाउन्स में रहते हैं, उनको भी अवेयर होना चाहिए, तभी जाके ये क्लर्क की एक वॉइस बनेगी, एक आवाज़ बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जो यूनिसेफ है, इनके इश्तराक से एक दिन का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो लीगल नालसा की एक स्कीम है जिसे चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज स्कीम 2024 कहते हैं, इसके ज़ेर एहतमाम जो लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन है, जो डिस्ट्रिक्ट ज़िला पहुँच के इसके यूनिट के जो मेंबर्स हैं, इनके लिए एक रोज़ा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है एडीआर सेंट्रल पहुँच में जो ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें यूनिसेफ की तरफ से जो कंसल्टेंट है सैयद मुस्तफ़ा साहब, वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इस यूनिट के मेंबर्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स हैं, डालसा के जो पैनल लायर्स और PLVs हैं, इनके अलावा पुलिस ऑफिसर्स, जो जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस एक रोज़ा प्रोग्राम को मुनक़्क़िद कराने का एक ही मकसद है कि बच्चों के रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, उन राइट्स को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनके राइट्स को प्रमोट करना है, सो दैट क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, वो फिजिकली और मेंटली बड़े इमेच्योर होते हैं। तो बच्चों के कहीं उनके जो राइट्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके इस प्रोग्राम का एक और पार्ट था, वो था एक्सक्लूसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन, यानी जहाँ भी कंफ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स होते हैं, उन एरियाज़ में हम देखते हैं कि जो अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव्स होते हैं, शेल्स होते हैं, लैंड माइन्स होते हैं, तो उनका खतरा बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन जो है, इसके बारे में भी एक अवेयरनेस जो है इसका एक पार्ट रखा गया। तो इस आज के इस प्रोग्राम में जो है ये 3 हिस्सों में हमने इसको 3 सेशंस में इसको जो हमने डिवाइड किया था। और इनागुरल सेशन में ही हमने जो IEC मटेरियल होता है, ये भी हमने बजरिया जो हमारे पैनल लायर्स और PLVs हैं, ये पूरी तहसील पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बच्चों के अंदर स्कूल्स में और पंचायत घर जो होते हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये IEC मटेरियल भी आपको ये दिखाना चाहूँगा।